Okay, good morning everyone. Is it visible? Online students, quickly. Is it visible? Okay. So in the last lecture, we have completed the transaction unit and we have started just security. So what is security? It is nothing but it ensures that the whatever things we are doing, that is correct or not, and that is allowed or not. That is known as the security. And data integrity, it means whatever users are trying to do are correct or not. That is the integrity. This slide we have discussed, right? And there's difference also we have discussed. So from this, that's the remaining. Security, generally it refers the collective measures used in protection. So whenever we are talking about the our data, it should be protective. Data should be protective. So for that, database management software will do the security. So for that, it provides the security from the unauthorized person. Unauthorized person, it means attacker. So that is the security. Generally, security is planned, implemented, and maintained by the DBA. If you remember, in the first unit, role of DBA, in that one point is this security of database. So DBA will plan, implement, and maintain the security of any database. If any loopholes find in any database, then it will create a lots of issues. For example, your data, your data are stored in a database. Your phone number, email ID, your personal details, and if it is not secure, then it will be leaked. आपका डेटा कहीं पे भी चला जाएगा और आपको कुछ फोन्स आएंगे और कुछ ऐसा एक्शंस होगा जो आपने परमिशन नहीं दी है. सो दैट इज द ऑथोराइज्ड. जनरली लेट मी गिव यू वन शॉर्ट एग्जांपल. You two friends are sitting together, right? And if you want to say send one message, so just you will type hello good morning TC1 and you will send it. That message will be received at the end. It means destination side from your friend side, right? As it is hello good morning TC1, ऐसा ही मैसेज आपके फ्रेंड को मिलेगा, but it is not directly gone to your friends. It will be sent through some network. तो जैसे ही आप यहाँ पे सेंड कर रहे हो, सेंड पे क्लिक कर रहे हो, योर मैसेज विल बी एनक्रिप्टेड. व्हाट इज एनक्रिप्शन? इट विल बी कन्वर्टेड योर प्लेन टेक्स्ट टू द साइफर टेक्स्ट. इट मींस आपका जो प्लेन टेक्स्ट है हेलो TC1 व्हाटएवर, उसको अबा डबा चब्बा में लिख देंगे. इट मींस अननोन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देंगे. देन इट विल बी ट्रांसफर टू द नेटवर्क. सो नेटवर्क में कहीं पे भी घूम रहा होगा आपका पैकेट, ठीक है, आपका मैसेज. अगर अटैकर ट्राई कर रहा है, अगर अटैकर ट्राई कर रहा है किसकी, उसको चोरी करने की, तो करने दो, वो चोरी करेगा और उसको रीड करने की ट्राई करेगा. लेकिन अबा डब्बा चब्बा में आपको पता चला कुछ, उसको भी नहीं पता चलेगा क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है. दैट इज द क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन. नाउ आपके फ्रेंड को पता चलेगा, अबा डब्बा चब्बा नहीं पता चलेगा, तो उसको रीड मैसेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स प्रोसीजर. इट मींस जो साइफर टेक्स्ट है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज द डिक्रिप्शन. ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में आ ही रहा है, वहां पे मैं दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, तो अच्छे से ध्यान रखना. सो डेस्टिनेशन साइड वो क्या करेगा? उसको डिक्रिप्ट करेगा और प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, तो आपका फ्रेंड वो प्लेन टेक्स्ट रीड कर पाएगा, तो उसको पता चलेगा कि उसने हेलो गुड मॉर्निंग TC1 ऐसा भेजा था. तो कोई भी मैसेज हो डायरेक्टली आपका फ्रेंड बाजू में बैठा है तो भी आपके फ्रेंड को डायरेक्टली नहीं जाता, वो पहले नेटवर्क में जाता है, नेटवर्क में से वहां आता है. समझ में आ रहा है? तो दिस इज द प्रॉपर
चैनल, तो उसके लिए सिक्योरिटी जरूरी है। आपका फोन लोकल ही है, फिर भी आप इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रहे हो? क्योंकि unauthorized people cannot access that thing, that's why, right? So it is most important to secure the database from unauthorized user. For example, if your company collects any data about customer, suppliers, as I told you, your data, right? अगर मेरे पास सारा डिटेल है आपकी, मैं आपका कई बार ऐसा मार्केट में होता है विच इज इलीगल एक्टिविटी, कि आपका डेटा जो है वो बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, फिर वो आपको मेल्स आते हैं, फोन्स आते हैं, फ्रॉड होता है, दैट इज इलीगल एक्टिविटी। बट ऐसा डेटाबेस बेचा भी जाता है, अगर आप क्लेम करो तो उसको अंडर द साइबर लॉ वो जेल भी जा सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है। So the data may be sensitive and private, as I told you. So it includes some process, tools and methodologies that ensure security within the database environment. जैसे मैंने discuss, I don't know whether you have discussed or not. In your phone, you have a pattern lock, then gallery lock, WhatsApp lock. Why it is required? सिर्फ पैटर्न लॉक से नहीं चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको फ्रेंड को कैलकुलेटर चाहिए तो आप पैटर्न लॉक उसके साथ शेयर करेंगे, तो गैलरी और व्हाट्सएप वो देख लेगा ना। तो उसके लिए as per our friendship we are allowing them to access the particular application. So some levels, it defines some levels के अकॉर्डिंग हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको राइट्स आप देंगे हम। क्लियर? So data security is the process of protecting files, database and accounts on a network by adopting a set of controls, application and techniques. Controls, it means access controls, जिसको जितना एक्सेस करने की कंट्रोल्स देने हैं वो नेक्स्ट थियरी आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट। एप्लीकेशन मैंने बोला, पैटर्न लॉक, गैलरी, व्हाट्सएप। देन टेक्निक्स, so there are several techniques to give the securities that identifies the relative importance of different data sets, their sensitivity, regularity and appropriate protection to secure those resources. मतलब जिसको जितने राइट्स देने हैं उतने ही राइट्स हम देंगे। जैसे आप क्या करते हो, आपके पास गैलरी में 5 फोल्डर है, एक फोल्डर पे आपने एप्लीकेशन लॉक लगा दिया है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो आपके फ्रेंड को 4 ही फोल्डर दिखेंगे, 5th one will be hidden. That is the security. So according to level, right? Now objective, security, that is the secret. Secret आपको पता है, secret का मतलब क्या हुआ? जो टॉप सीक्रेट होता है। आपका सीक्रेट अगर कोई जान जाता है तो दिक्कत हो जाती है ना। अगर आपका सीक्रेट आपके पेरेंट्स जान जाए तो प्रॉब्लम होगा। सो इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू अनऑथोराइज्ड यूजर। अनऑथोराइज्ड यूजर अगर उसको पता चल गया कि आपका अफेयर कहाँ पे चल रहा है आपके ग्रुप के अलावा, तो वो क्या करेगा? चालू क्लास में भी और आपके पेरेंट्स के साथ सामने भी वो डिस्क्लोज कर सकता है। तो सिक्योरिटी जैसा कुछ रहेगा नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो सिक्योरिटी मस्ट बी देयर। लाइक एग्जांपल, स्टूडेंट्स ग्रेड कैन नॉट टू एग्जामिन बाय स्टूडेंट्स। आपको पेपर चेक करने के लिए मैं दे दूं आपका ही, तो क्या होगा? एग्जामिन करने के लिए नहीं दे सकता, इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और मैंने वन मोर एग्जांपल, in our college your paper will be scanned, entire answer sheet will be scanned and first page of that answer sheet will be cut. वो कट हो जाएगी, फिर कोई भी फैकल्टी के पास जाएगी, इट मींस सिक्योरिटी हुई। अगर मुझे पता चला कि ये जेनिल का पेपर है तो मैं 30 आउट ऑफ 30 दूंगा। अगर मुझे पता चला कि हर्ष का पेपर है तो मैं क्या करूंगा? 30 आउट ऑफ 8 दे दूंगा। लेकिन वो मुझे पता ही नहीं चलेगा तो that is the advantage of security, right? Integrity, only authorized user modify the data. जिसको हमने राइट्स दिए वही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? लाइक इन योर पीसी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टूडेंट यूजर नेम्स वी हैव, गेस्ट यूजर नेम्स। सो गेस्ट को एडमिन के राइट्स नहीं देते, स्टूडेंट को एडमिन के राइट्स नहीं देते। अगर इफ यू आर ऑथोराइज्ड पर्सन
then you can modify the administrator activities, right? Availability, it means authorized uses should not be denied access. For example, instructor should be allowed to change the result. जो भी इंस्ट्रक्टर को हमने ऑथोराइज किया है वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में डिफरेंस है. Not both are not same. Authentication, it means it's all about your credential. So it determines whether users are who they claim to be. आप क्लेम कर रहे हो कि मैं ही जेनिल हूं, उसका प्रूफ क्या? आधार कार्ड. तो वो ऑथेंटिकेशन. आप जीमेल में लॉगिन कर रहे हो कि जेनिल डॉट सरनेम jenil.sa@marwadi education username and password 12345. It will deny. Why? It is not authenticated. क्योंकि jenil.sa और GR नंबर वो सबको पता ही है, लेकिन पासवर्ड अगर मिसमैच हुआ तो वो आपको बोल देगा यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, you are not an authenticated person. So that is authentication. पैटर्न लॉक गलत हो रहा है तो ऑथेंटिकेशन मना करना है. So it checks the detail of entity with a view of identifying the entity. It verifies the user credential, that is known as the authentication. Now come to the authorization. Authorization, it means it determines what user can and cannot access. That is authorization. लिमिटेशन, आपकी क्या लिमिटेशन है वो आपको पता है. उससे आगे कुछ मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बोल दूंगा इट्स नॉट योर राइट. सो दिस इज ऑथोराइजेशन. आपने अपने फ्रेंड को कैलकुलेटर की परमिशन दी है तो वो दूसरा कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा. सो ये ऑथोराइजेशन कंट्रोल कैसे होता है? परमिशन देने से, एक्सेस कंट्रोल से. हम कितनी परमिशन देंगे, ठीक है? कितनी मतलब लेवल भी होता है. आपके 5 फ्रेंड है, आप 5 में से ज्यादा एक फ्रेंड के साथ बनता है तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको आप सारी परमिशन देते हो. दूसरा जो फ्रेंड है उसको कुछ परमिशन दे रहे हो. तीसरा जो फ्रेंड है उसको सारी बातें नहीं बताते, कुछ बातें बताते ही नहीं. लाइक लेवल. आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा किसको नहीं बोलेगा तो ही आप बताएंगे. सो दैट इज ऑथोराइजेशन. सो इट वैलिडेट्स यूजर परमिशंस, कितनी परमिशंस है. So this is written over here as a difference. Authentication and authorization. Just read it. Nothing new is there. Now my first question. Authorization and authentication. Which will be the first action? क्या पहले होना चाहिए, ऑथोराइजेशन या फिर ऑथेंटिकेशन? Authorization should be first. How many of you are saying authorization should be first? Raise your hand. How many of you are saying authentication should be first? Online students, you can type your answer. Which one will be first, authentication or authorization? Yes, Jeet Patni is saying authentication first. Yes, right. Authentication should be first because if you are not a proper user, then access की तो बाद में बात है, पहले एंटर ही नहीं कर पाएंगे. पैटर्न लॉक खुला मोबाइल का तो गैलरी में जा सकते हो और फिर हम चेक करेंगे कि आपको गैलरी के राइट्स है कि नहीं, परमिशन है कि नहीं एक्सेस करने, राइट. सो दिस इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. नाउ ऑडिट का मतलब पता है आपको? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट, चेकिंग, इंस्पेक्शन, राइट. सो नेक्स्ट वन स्मॉल टॉपिक, ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल में ऑडिट ही होगा. ऑडिट क्या करेंगे? security, whether you are doing right activity or not. If you are doing wrong activity, then you will be under cyber crime, and according to cyber law you will be in a jail. So audit trail का मतलब क्या है?
लॉग बेस्ड रिकवरी हमने देखा था, उसमें लॉग क्या था, हिस्ट्री। तो ऑडिट में भी यही होगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी लॉग्स है, उसको हम ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करने से हमें पता ऐसा लगा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आगे एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर सिटिंग हियर, और मुझे ऐसा लगा कि पीछे 2-3 स्टूडेंट्स मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा तो वो सारे स्मार्ट है, तो वो मोबाइल बंद कर देंगे, क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। फिर मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्शन, ऑडिट करूंगा, क्या, ओपन योर लॉक इन फ्रंट ऑफ मी। बोला कि सर कुछ नहीं है, फिर भी मैं लॉक ओपन करवाऊंगा, और लास्ट एप्लीकेशन कौन सी ओपन हुई है वो तो दिख जाएगा। तो दैट इज लॉक। अगर जो लास्ट एप्लीकेशन इलीगल ओपन की है, उसमें कुछ ऐसा वैसा पेज ओपन किया है, तो मैं उसको बाहर भी निकाल सकता हूँ, डिसिप्लिनरी एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान। समझ में आ रहा है? अगर कुछ बड़ा कांड किया है तो आई विल कॉल देयर पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? सो दैट इज ऑडिट ट्रेल, नथिंग एल्स। सो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी मींस इंडिविजुअली सारे के लोग देखेंगे। मींस यहाँ पे सपोज 25 स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, सो आई विल चेक फर्स्ट लॉग, सेकंड लॉग, थर्ड लॉग, फोर्थ लॉग। और मुझे चारों में से, 4 लोग में से ऐसा लगा कि जेनिल कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो जेनिल के लॉग में मैं चेक करूंगा डिटेल में, एक वेबसाइट कितनी बार ओपन की, रिपीटेड, और कितने टाइम तक ओपन रखी उसने। उससे पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या करना चाहता है। So that is individual accountability. Intrusion detection. जैसे आप करते ही हो ना तहकीकात, आपका फ्रेंड है, कुछ आपसे छुपा रहा है, तो आप पॉइंट ढूंढते हो कहां पे वो पकड़ा जाए। आप क्या करते हो, ऑडिट ही करते हो। अगर वो आपका फ्रेंड मोबाइल लेके बैठा है और आपने देख लिया कि ये साइट ओपन की है, दिखा दिखा क्या क्या कर रहा है, वो बोला कुछ कुछ नहीं, फिर आप डिटेल में जाएंगे, दिखा तो सही। फिर आप उससे मोबाइल ले छीन के आप उसकी हिस्ट्री और लॉग चेक करेंगे, ये साइट तूने इतनी बार ओपन की है, मतलब ये तू कुछ इलीगल एक्टिविटी करने वाला है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूडर का मतलब ये होता है, इंट्रूडर कि मैंने बोला ना, आप सबको ये पता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन व्हाट्सएप में आता है। उसका मतलब क्या है कि आप सेंडर उसको एनक्रिप्ट करके रिसीवर को सेंड कर मैसेज, दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो मैंने जैसे बोला कि नेटवर्क में आप जैसे ही मैसेज फ्लोट करेंगे, आप जैसे ही सेंड बटन क्लिक करेंगे, मैसेज आपका नेटवर्क में हो जाएगा। आपको वो भी नहीं पता होगा कि नेटवर्क में कहां से कहां जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी उसको हैक कर सकता है, अटैक कर सकता है, दैट इज इंट्रूडर, राइट। सो उसको डिटेक्ट करने का काम ये करेगा। So it refers to process of identifying attempts to penetrate a system and gain unauthorized access. So audit trails will be designed such a way that it will find the record of appropriate information from the intruder. दूसरा शॉर्टकट में एग्जांपल, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। सपोज एक स्टूडेंट ने एक लेटर लिखा, कौन सा मैं नहीं बता रहा, एक लेटर लिखा जो फर्स्ट बेंच में बैठ रहा है और लास्ट बेंच तक उसको पहुंचाना है। आप इमेजिनेट कर सकते हो ना, वो लेटर कैसे पहुंच जाएगा, फर्स्ट टू लास्ट लेटर, लास्ट बेंच पे ऐसे ही पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। कैसे पास होगा, नेक्स्ट बेंच में जैसे ही आप देखते हो क्या लिखा क्या लिखा, ला बाजू वाला देख लेगा, पीछे वाला, बाजू वाला, पीछे वाला, बाजू वाला, दूसरे पार्ट वाला, तीसरे पार्ट वाला, चौथे पार्ट वाला, फिर लास्ट में उसके पास जाता है। तो ये सब बीच वाले क्या है, इंट्रूडर ही हुए, इंट्रूडर डिटेक्शन। तो वो ऑडिट ट्रेल से पता चलेगा कि किस किस के हाथ में ये लेटर गया है। अगर ऑडिट ट्रेल उसकी करनी है, किसके हाथ में लेटर गया है, तो क्या करना चाहिए, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करो, सबकी आ जाएगी। या फिर कैमरा चेक करवाओ, सो लॉग चेक करो, बैक में जाओ और कैमरा चेक करो तो पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑडिट ट्रेल। Detail insight. So audit log tracks how long and how frequently individual user access a document that I told you. एक साइट आप कितनी बार ओपन कर रहे हो रिपीटेडली,
कितने टाइम तक ओपन कर रहे हो, उससे पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर क्या है। समझ में आ रहा है? और बेस्ड ऑन योर बिहेवियर यू विल बी अवॉर्डेड, राइट ना? अवॉर्ड ही मिलेगा ना। आपका बिहेवियर अच्छा है, अच्छा तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी की बात है। ऑडिट ट्रेल हम अवॉर्ड पॉजिटिव वे में देने के लिए नहीं फाइंड करते। ऑडिट किस लिए करते हैं? कि आप कुछ सस्पिशियस हो, आप डाउटफुल हो कैंडिडेट, कि आप भाई कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप आइडेंटिफाई करे जाएंगे और साइबर सेल में आपकी कंप्लेंट फाइल होगी। और साइबर लॉ जैसे हमारा दफा 304 420 जैसे होती है, वैसे साइबर लॉज भी होता है। सो साइबर क्राइम वो आपको पता ही है, ठीक है? उसका डिपार्टमेंट अलग ही होता है। अकॉर्डिंग टू दैट दे विल पनिश यू, ठीक है? Now let's talk about the data encryption that you know. Encryption means hello good morning receiver, वो मैसेज प्लेन टेक्स्ट हुआ, उसको हम सामने अबा डबा चबा में कन्वर्ट करके जा दे रहे हैं। सो अबा डबा चबा करने की जो प्रोसेस है उसको एन्क्रिप्शन बोलते हैं। सो रेडी, it is the security method in which information is encoded in a such a way that only authorized user can read it. Only authorized user can read it. अभी मैंने प्लेन टेक्स्ट बोला, क्या बोला? हेलो गुड मॉर्निंग रिसीवर। वो कितने को पता है? जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसको, ठीक है? जो एब्सेंट है उसको भी पता नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि अबा डबा चबा, तो उन लोगों को क्या पता चलेगा? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं उसको पता। आप बोलो अबा डबा चबा, तो आपको क्या पता चलेगा? हेलो गुड मॉर्निंग रिसीवर। समझ में आ रहा है? तो ऑथोराइज पर्सन ही उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, अनऑथोराइज उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। सो बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस एनक्रिप्शन इज use the encryption algorithm. You cannot directly do the abba dabba chabba. There are some algorithms, encryption algorithm. So encryption key से encryption algorithm use करके plain text को cipher text में convert कर, और at the receiver side cipher text को plain text में convert करने के लिए decryption key चाहिए और decryption algorithm चाहिए। समझ में आ रहा है? So that is the entire process. So without knowing last one, without knowing encryption and decryption key, you cannot do the entire process. It may be a same or different, but there must be relation between the both, which must be secret. Encryption और decryption में उसमें दो की आती है, पब्लिक की और प्राइवेट की, असिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की। If sender and receiver both are using the same key, then it is known as the symmetric. Right? Let's see further. Plain text. This is the data or readable message that is fed into the algorithm as an input. After inputting, the plain text will be converted into a abba dabba chabba, that is cipher text. So encryption algorithm performs the various transformation on the plain text of encryption algorithm. You will learn that algorithm in a higher semester in INS subject. Our syllabus, it is not in a detail, although for your understanding, for your interest, I will give you a small demo. वो पूछते नहीं है जनरली, अगर पूछे भी तो आपको आने चाहिए, ऐसे ही एल्गोरिथम। सिंपल पब्लिक एंड प्राइवेट की, these are the pair of keys that have been selected for encryption and decryption. एक encryption के लिए यूज हुई तो दूसरी decryption के लिए यूज होगी, प्राइवेट और पब्लिक की। It depends on algorithm. Cipher text, so sampled message produced as a output, and it depends on a plain text and the key. आपने की कौन सी यूज की है, कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। Cipher text it means abba dabba chabba, right? And decryption algorithm, so cipher text को plain text में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो decryption चाहिए, right? Now symmetric key encryption. In this key, encryption key is also used as the decryption key. Data encryption standard is the example of symmetric encryption. Symmetric means similar,
So similar it means at the encryption and at the decryption side, same key will be used. That is known as the symmetric key. That's it. समझ में आएगा? अगर दोनों साइड अलग अलग की यूज कर रहे हैं तो उसको असिमेट्रिक की बोलेंगे. आगे ए भी डाल दो, राइट? So by using the symmetric key, fast encryption and decryption is possible for routine use with the sensitive data in the database. But for the routine, जैसे मुझे आपको मैसेज करना है तो it is symmetric key will be sufficient. But लेकिन I am in a army, Indian army or Navy army or anything, then सिमेट्रिक की चाहिए क्योंकि डेटा सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव, रूटीन नहीं है, तो उसमें असिमेट्रिक की यूज करो क्योंकि इंट्रूडर जो है वो नेटवर्क में से एक्सेप्ट करके ट्राई करेगा ना. जैसे जैसे आपके फ्रेंड का फोन आपके हाथ में आ गया, आप क्या करते हो? आप इतने भी सीधे नहीं हो. यू विल ट्राई दी पैटर्न्स, राइट? ट्राई करेंगे. उसकी बर्थ डेट हो सकती है, उसका ये पैटर्न हो सकता है, समथिंग उसमें लग गया तो ठीक. तो दैट इज वन काइंड ऑफ अटैक. उसको अटैक ही बोलते हैं. So, you will try and try. अगर आपको थोड़ा सा अंदेशा है कि ये पासवर्ड उसका 1203 है तो आप उसके नियर बाय कुछ ट्राई करते हो, एक पासवर्ड शायद लग जाए. ऑल पॉसिबल. तो एक वन काइंड ऑफ अटैक ही हुआ. This is the diagram for the cipher model. First plain text, then after encryption algorithm. There are lots of encryption algorithm, as I told you. Caesar cipher, DES, RES, hash functions. There are lots of. By applying some secret key said by sender and received, then after transmitted cipher text to over the network, and then at the receiver side, it will first decrypt the algorithm. It will use the decryption algorithm by applying some key, and then it will get the plain text. So this is the actual encryption decryption process. Clear? It may ask write a short note for encryption. So you need to draw this one. It is not like that you need to draw the similar diagram. कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दो और सारी चीजें एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन लिख दो अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज. सो वो हो जाएगा. नाउ strength of the symmetric key encryption depends on the size of the key used. उसका मतलब क्या हुआ? 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 8 बिट, 5 बिट, 9, 16 बिट, 32 बिट. जितनी साइज होगी की अकॉर्डिंग टू दैट सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, राइट? वो भी हम एग्जांपल थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. Public key encryption, name suggests meaning publicly available, that is known as the public key. ऐसा ही होना चाहिए. तो public key encryption algorithm uses pair of keys, one of which is secret key and one is public key. एक secret key private key होगी और दूसरी public key होगी. ठीक है? पब्लिक होगी वो सबके पास अवेलेबल होगी, लेकिन प्राइवेट है वो जिसके पास होगी वही सिर्फ उसको एक्सेस कर पाएगा. समझ में आ रहा है? मैंने सपोज ये पीपीटी को पासवर्ड लगा दिया, ये पीपीटी सबके पास अवेलेबल है, लेकिन इसका पासवर्ड PC1 वालों को ही बताया जो ऑफलाइन क्लासेस में है, तो सिर्फ आप लोग ही एक्सेस कर पाएंगे. नो अदर कैन एक्सेस दिस पीपीटी. समझ में आ रहा है? तो दिस इज द पब्लिक की एंड प्राइवेट की प्रोसेस. नाउ सम क्लासिकल साइफर्स, जस्ट लेट्स गो थ्रू इट. एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको समझ में आया कि सर इतनी देर से जो बोल रहे हैं उसका एक्चुअल रियल एप्लीकेशन क्या है. दिस ऑल आर द
Example. So plain text is viewed as a sequence of characters. There are mainly three types: substitution cipher, transposition cipher, and third one is the product cipher. Substitution का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? रिप्लेसमेंट. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट. So this category, it will one character will be replaced by another character. So replacing each element of plain text with another elements. Second, ट्रांसपोजिशन और परम्यूटेशन साइफर. ट्रांसपोजिशन इट मींस जो भी पोजीशन है उसको ट्रांसपोजिशन करो. अंकुर, illegal activity is going there. I am auditing. Under the cyber crime, you will be in jail. And according to cyber law, you will be absent. That is our punishment, right? Based on your performance, you get very, very less marks in DBMS subject because of this. I don't know where is the look for. I think you only 20 marks, right, in DBMS. This is not expected from you because in every lab and lectures, first answer will be from. Always I got the first answer from Ankur. So this is not एक्सपेक्टेड. दूसरे कोई स्टूडेंट्स का ऐसे कम मार्क्स आए तो ठीक है, फाइन, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो और आंसर भी नहीं दे रहे हो, करेक्ट रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो. यू आर गिविंग द रिप्लाई बट करेक्टली दे रहे थे. I don't know what is the reason. I will come to you next. Transposition, जो भी पोजीशन है उसको चेंज कर दो, दैट इज ट्रांसपोजिशन. So shuffle or rearrange the position, that is known as the transposition cipher. So आप कितनी तरीके से आप उसको रीसफल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर. व्हाट आर द पॉसिबिलिटी टू ट्रांसफर दिस 4 सीट्स? इस 4 लोगों को मुझे चेंज करना है, तो सीट चेंज करने की पॉसिबिलिटी कितनी? सो परम्यूटेशन आएगा ना कि एक नियर कॉम्बिनेशन होगा 1 2 3 4 2 3 4, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा. सो पोजीशन चेंज करो. नेक्स्ट, प्रोडक्ट साइफर. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ substitution as well as transposition. Now let's see the first example of Caesar cipher, that is invented by the Julius Caesar, and it is the type of substitution cipher. In this cipher, plain text will be replaced by third character after the next third character. It means here you can see plain text is our ABCD, और यहाँ पे हम substitution कर रहे हैं. So each letter is replaced by the letter 3 position further down the alphabet. So A will be replaced by B, C and D. So D is the third character. So D से replace होगा. So cipher text में देखो, A is replaced with B, right? Second character B. B is replaced with what? Next third character E. E से हुआ है cipher में. Yes. Z देखो, Z का थर्ड कैरेक्टर क्या होगा? नेक्स्ट A, B एंड C. सो C विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ Z. तो होए लास्ट में ये साइफर टेस्ट हो गया. समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको आपको करेक्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा? यू नो दिस सीजर साइफर. अगर मैं कोई आपको अबा डबल चबा दूं तो आप उसको क्या करेंगे? अबा का ए उसमें +3 करके और -3 करके ए को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ना. -3 करके +3 किया, -3 करो तो इक्वल हो जाएगा ना, तो ओरिजिनल कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे. तो ये तो इजी है ना क्रैक करना. तो कोई भी अटैकर उसको इजीली क्रैक कर सकता है. सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर सिक्योर, राइट? सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेट. फॉर एग्जांपल, one example is given to you, Ohio state.
O stands for R, H stands for K, I stands for L. So plus 3, right? Next, monoalphabetic substitution cipher. In this monoalphabetic substitution cipher, we are not going to do the plus 3 or plus 5. Not. One character will be replaced by some another character, which is defined by U. सपोज मैंने डिफाइन कर दिया ए को मुझे एम से रिप्लेस करना है, आपने डिफाइन किया ए को मुझे जे से रिप्लेस करना है. सो एवरी टाइम कॉम्बिनेशन तो अलग हुआ, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा ए विल बी रिप्लेस बाय वो. कौन से कैरेक्टर से रिप्लेस किया वो भी पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि मैं एम से रिप्लेस कर रहा हूँ, जेनिल जे से रिप्लेस कर रहा है, हर्ष एच से रिप्लेस कर रहा है, अंकुर ए से रिप्लेस कर रहा है. ए इज नॉट रिप्लेस बाय ए. समझ में आ रहा है? So this algorithm will be little bit stronger compared to previous one. Am I right? Am I right? So let's check. First example, plain text is A B C D E F G. Cipher text is D K B Q F I B. मतलब क्या हुआ? A is replaced by D. आप बोलेंगे सर ये तो +3 है. Okay, +3. B is replaced with K. Is it +3? तो आप ढूंढते रह जाओगे कौन से कैरेक्टर को किससे रिप्लेस किया. इज इट पॉसिबल टू क्रैक दिस वन? सो जेड का देखो, जेड इज रिप्लेस विथ एन, तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सेकंड एग्जांपल इज गिवन एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू रिप्लेस द सेम कॉम्बिनेशन. ए को डी, पहले एग्जांपल में ए को डी से रिप्लेस किया तो दूसरे एग्जांपल में ए को डी से रिप्लेस करना जरूरी नहीं है. ए को आप एम से भी रिप्लेस करो, कोई भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो. राइट. दूसरा एग्जांपल, प्लेन टेक्स्ट इज इफ वी विश टू रिप्लेस लेटर्स. दिस इज आवर प्लेन टेक्स्ट. उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन. मोनो इट मींस वन. मोनो इट मींस वन. वन अल्फाबेट सब्स्टिट्यूशन એટલે एक कैरेक्टर की जगह दूसरा कैरेक्टर. तो दूसरे में देखो प्लेन टेक्स्ट में I is replaced with W, F is replaced with I. Now plain text and cipher text is given to you. My question, can you able to crack this cipher text by using this? You I am not gender, I am not asking to gender, I am asking to you. आप लोग ये इसको मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्स्ट टेक्निक से इसको क्रैक कर पाएंगे? यस और नो? यस और नो अंकुर? यस और नो? कौन देगा आपको प्लेन टेक्स्ट? तो फिर साइफर टेक्स्ट देने का मतलब क्या? एग्जाम में मैं आपको आंसर की भी दे दूं और क्वेश्चन पेपर भी दे दूं तो एग्जाम लेने का मतलब क्या? यूज योर स्मार्टनेस. कर सकते हो आप? कोई आप बोल रहा है? Abdeli is saying yes and then after saying no. Yes, no. What should I consider, Abdeli? So आप सब लोग डिब्बे हो, मैं प्रूव कर सकता हूं. क्यों? You do not have a mind. अब किसी के पास माइंड ही नहीं है. घर पे रख के आए हो क्या? ये एग्जांपल देखो, इफ वी विश टू रिप्लेस लेटर्स. अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ अपने माइंड में गांठ बांध लो. क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. आपको देखना है तो देख लेना, ठीक है. और वहां पे सिर्फ कॉमन सेंस ही काम आते हैं, वहां पड़ोसी काम नहीं आता है. खुद का ब्रेन ही काम आता है. देखो यहाँ पे अगर आपके पास ब्रेन है, कॉमन सेंस है, तो देखो इफ वी विश टू रिप्लेस लेटर्स. आई कितनी बार रिप्लेस हुआ है प्लेन टेक्स्ट में? आई कितनी बार रिप्लेस हुआ है? चेक करो. 2 बार. फर्स्ट कैरेक्टर इज आई एंड 1 2 3 4 5 6 character is I, right? First I is replaced with whom?
W, check the six character of plain text and cipher text. Is it same pair? दिमाग की बत्ती जली? आप ऐसे नहीं कर सकते हो आइडेंटिफाई, तो साइफर टेक्स्ट करेक्ट नहीं कर सकते हो। अब बोलो एस लेटर का क्या होगा? एस इज रिप्लेस विथ व्हाट? कॉमन सेंस, लास्ट देख लो ए। क्रॉस वेरीफाई करना है तो प्रीवियस में जाओ और एस जितनी बार भी आता है उतनी बार देखो कि ए ही है कि नहीं है। देखो आई 6 कैरेक्टर है, उसकी जगह डब्ल्यू है, उसके बाद एस है 20 का एस, और डब्ल्यू के बाद ए है साइफर टेक्स्ट में, तो कंफर्म हो गया एस इज रिप्लेस विथ ए। और चेक करना है, और चेक करना है प्लेन टेक्स्ट में एफ देखो, इफ का एफ है सेकंड कैरेक्टर, इट इज रिप्लेस्ड इन साइफर टेक्स्ट विथ आई। साइफर टेक्स्ट में देखो कहीं पे भी आई है नहीं है, उसका मतलब कंफर्म हो गया कि एफ इज रिप्लेस विथ आई। यस, दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज द डिफरेंट थिंग कि आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम? मे बी 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 2 डे। अगर आपने दिमागी कहीं पे यूज नहीं किया है तो आप 1 मिनट में कर पाएंगे, क्योंकि अनयूज ब्रेन है, और अनयूज ब्रेन का मार्केट में ज्यादा वैल्यू होता है ना। यस और नो? क्या होता है रंजय? अनयूज ब्रेन का मोल ज्यादा आता है, कीमत ज्यादा आती है, कोई नहीं लेगा। जैसे आप माइंड यूज करोगे उतना माइंड आपका डेवलप ज्यादा होगा, लॉजिक ज्यादा होगा। अनयूज्ड का नहीं आता, यूज्ड ब्रेन का पैसा ज्यादा आता है। समझ में आ रहा है? सो बाय दिस वे यू कैन crack this one, but it is little bit stronger compared to previous one, right? Are you agree? सब्स्टिट्यूशन +3 +4 की वजह ये तो स्ट्रॉन्ग ही है ना, फिर भी हम क्रैक कर पा रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? वी आर अटैकर, वी आर इंट्रूडर, वी कैन डू इट। आप लोग सिर्फ वर्ड्स ही सुनते हैं, सर साइबर सिक्योरिटी में ये हैक करना है, ये हैक करना है, हैकिंग करना है, मुझे हैकिंग करना है, लेकिन हैकिंग का बेसिक तो पता नहीं चलता आपको। हैकिंग में माइंड चाहिए, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आप मेजर हो गए। अगर आपको जाना है उस साइड पे तो यू नीड टू डेवलप योर लॉजिक, यू नीड टू डेवलप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड रीजनिंग में तो ये कॉमन ही है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट transposition cipher we will discuss in our next lecture. If you have any query, any doubt, you may ask. If you have any query, any doubt, you may ask. If you do not have any query, any doubt, paste your enrollment number into a chat and then you may leave. Thank you all of you. Have a nice day.